आज हम भगवत गीता चैप्टर 17 द डिविजन ऑफ फेथ के श्लोक 4 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यजन्ते सत्विका देवान् यक्षा रक्षंसि रजसः प्रेतान् भूता गणांस चन्ये यजन्ते तमसा जना। Men in the mode of goodness worship the demigods, those in the mode of passion worship the demons, and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. तो जैसे अलग अलग जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, जो पॉजिटिविटी में रहते हैं वो डेमिगॉड्स को कर सकते हैं, जो पैशन के मोड में रहते हैं वो डीमंस को यानी कि असुरों को पूजते हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। In this verse, the Supreme Personality of Godhead describes different kinds of worshippers according to their external activities. लोगों के कर्मों के ऊपर डिपेंड करके उनके क्या क्या मतलब नेचर होगा उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल इंजंक्शन ओनली द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज वर्शिपेबल, बट दोज हु आर नॉट वेरी कन्वर्सेंट विथ और फेथफुल टू द स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस वर्शिप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू their specific situations in the mode of material nature. Those who are situated in goodness generally worship the demigods. The demigods include Brahma, Shiva and others such as Indra, Chandra and the sun god. There are various demigods. Those in goodness worship a particular demigod for a particular purpose. Similarly, those who are in the mode of passion worship the demons. We recall that during the Second World War, a man in Calcutta worshipped Hitler because thanks to that war he had amassed a large amount of wealth by dealing in the black market. Similarly, those in the mode of passion and ignorance generally select a powerful man to be worshipped. जैसे बाबा जी, माता जी, अम्मा जी, वो उनको वर्शिप करते हैं, लोगों को, पावरफुल एक इंसान को। They think that anyone can be worshipped as God and that the same results will be obtained. वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करते हैं, मतलब भगवान को जा कर के थैंक यू बोलने के जगह वो लोगों को थैंक यू बोलते हैं ज़्यादा। हाँ, लोगों को भी थैंक यू बोलिए, बट उसको पूजना या प्रेयर करना सिर्फ हम भगवान को कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड हियर दैट दोज हु आर इन द मोड ऑफ पैशन वर्शिप एंड क्रिएट सच गॉड्स, एंड दोज हु आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस इन डार्कनेस वर्शिप डेड स्पिरिट्स. Sometimes people worship at the tomb of some dead man. Sexual service is also considered to be the mode of darkness. Similarly, in remote villages in India, there are worshippers of ghosts. We have seen that in India, the lower class people sometimes go to the forest, and if they have knowledge that a ghost lives in a tree, they worship that tree and offer sacrifices. These different kinds of worships are not actually God worship. God worship is for persons who are transcendentally situated in pure goodness. In the Srimad Bhagavatam, it is said, Sattvam Visuddham Vasudeva Sabditam. When a man is situated in the pure goodness, he worships Vasudeva. The purport is that those who are completely purified of the material modes of nature and who are transcendentally situated can worship the Supreme Personality of Godhead. जो तीनों चीज़ों से मुक्त है। कुछ लोग हैं जो भूत प्रेत को पूजते थे, कुछ जंगल में जाके उसके बारे में बोला गया। कुछ लोग होते हैं जो कुछ इंसान को पूजते, कुछ लोग जो भगवान को पूजते, लेकिन जो इन तीनों मोड से, मतलब स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस इन सारे चीज़ों से, जंजाल से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर देना है, वो गोविंद को, वासुदेव को, भगवान को पूजते हैं। ठीक है। सो द पर्पट इज दैट दोज हु आर कंप्लीटली प्यूरिफाइड इन द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर एंड हु आर ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड कैन वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। यहाँ पे शिव को डेमिगॉड बोला जरूर है, बट शिव लोग में चले जाना भी होता है, सुनाई देता है, गोलक धाम में जाना, वैकुंठ में जाना। ठीक है। The impersonalists are supposed to be situated in the mode of goodness and they worship 5 kinds of demigods. मैंने कल कहीं पे सुना था, एक्चुअली कोई पॉडकास्ट सुन रही थी, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि चित्रलेखा जी की पॉडकास्ट थी। जैसे कि हम शिव जी के जब बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं शिव जी के, तो शिव जी ही हमें प्रमोशन दे करके
भेज देते हैं कृष्ण के पास में या विष्णु के पास, जो भी कृष्ण विष्णु जो भी बोले, कृष्ण के पास में बोला गया था। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं हमेशा ही सबको बोलती हूँ, शिव ने मुझे फील हुआ पूरा हाथ पकड़ के, जैसे शिव ने मुझे कृष्ण के हाथ में भेजा। कैसे मैं शिव को पूछते पूछते कैसे मैं विष्णु को पूछने, मतलब विष्णु यानी कृष्ण को एक्चुअली पूछने लग गई, मुझे कभी पता ही नहीं चला। मुझे पता तो है कब हुआ, बट मुझे वो फीलिंग कैसे वैसी हुई, और मुझे शुरू शुरू में बहुत गिल्ट होता था कि मैं शिव की भक्त होकर, शैव होकर के मैं कैसे इतना कृष्ण भक्ति कर सकती हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिव खुद भी राम जी का भक्त करते हैं। शिव खुद भी करते हैं भक्ति हमारे विष्णु के, वो खुद भी भक्त है। तो जो हम मेरे आराध्य करते हैं तो मुझे भी वो करना चाहिए, जो मेरे शिव करते हैं वो मुझे करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने कृष्ण का नाम जपना शुरू किया था। लेकिन एक्चुअल में मैं हृदय से परम शैव हूँ, थी और आगे भी रहूँगी। तो शिव लोग ही मुझे ज़्यादा प्रिय है, शिव ही मुझे ज़्यादा प्रिय है। बट हाँ, शिव को जो लोग पूछते हैं उसके में कुछ उग्रता होती है, वो मुझे नहीं सूट करती। तो उस हिसाब से मतलब आई लव अ मिक्सचर ऑफ शिव एंड कृष्ण बोथ। तो देखते हैं भगवान की क्या इच्छा या लीला होती है, उस हिसाब से क्या प्राप्त होती है। They worship the impersonal Vishnu from form in the material world, which is known as philosophized Vishnu. Vishnu is the यहाँ पे बोला गया है कि वो impersonal, मतलब पर्सनल मतलब शरीर, impersonal मतलब निराकार। निराकार विष्णु को कुछ लोग मटेरियल वर्ल्ड में प्रे करते हैं, जिनको फिलोसोफाइज्ड विष्णु बोला जाता है। विष्णु इज एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, बट द impersonalists मतलब जो निराकार पूजा करते हैं, because they do not ultimately believe in the supreme personality of Godhead, imagine that the Vishnu form is just another aspect of the impersonal Brahman. Similarly, they imagine that Lord Brahma is the impersonal form of the material mode of passion. तो वो ब्रह्मा को विष्णु को सब सेम समझते हैं, सेम टाइप ऑफ एनर्जी समझते हैं। Thus, they sometimes describe 5 kinds of gods that are worshipable, but because they think that the actual truth is impersonal Brahman, they dispose of all worshipable objects at the ultimate end. तो वो क्योंकि निराकार में कुछ लोग, संख्या लोग हैं जो निराकार, मैं खुद भी निराकार में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बट हाँ निराकार पूजा करते हैं, वो सारे पूजनीय सामानों को अल्टीमेटली फेंक देते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, डिस्पोज कर देते हैं, और ऑल वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट्स या जो मूर्तियाँ होती है उनको वो फेंक देते हैं। लेकिन वो चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती, फेंकना नहीं चाहिए, उसको सजा करके रख सकते हैं या उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। इन कंक्लूजन, द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर कैन बी प्यूरिफाइड थ्रू एसोसिएशन विद पर्सन्स हु आर ऑफ ट्रांसेंडेंटल नेचर। सत्संग में रह के, अच्छे संगत में रह के आप खुद को अच्छे एनर्जीज में रख सकते हैं। जैसे लोगों के साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, वैसा बन जाएंगे धीरे धीरे। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लोग, जैसे बोला जा रहा है ना कि मूर्तियों को डिस्पोज कर देते हैं, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। मूर्ति को डिस्पोज नहीं करना चाहिए। मूर्ति को अगर आप पूजने के बाद में उसमें कुछ खराबी होती है, उसको भी, क्योंकि आपने उसमें वो डिवाइन एनर्जीज़ को कल्पना की, उसमें डिवाइन एनर्जीज़ को बुला करके वहाँ पे फिर आपने पूजा किया, राधे राधे, तो आपको इसीलिए उसका उतना रेस्पेक्ट तो करना चाहिए। अगर आप डिस्पोज करना चाहते हो तो रेकमेंडेड है, अभी बोला जाता है कि ना करें। कुछ तरीके से उसको बस एक ही लाए मूर्ति और उसी को रखें। एकाधिक रखने का जगह आपके पास है तो अलग बात है, अदरवाइज़ एक ही को लाए और उसको रखें और सत्संग करें, और कोशिश करें कि स्वर्ग को प्राप्ति या नरक की प्राप्ति का ना सोच के इन सबसे परे जाकर के उस परमेश्वर के पास में खुद को स्पिरिचुअली समर्पित कर दे। बाकी वो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही करेगा। यही तक है श्लोक नंबर 4 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 17। अगले दिन हम श्लोक 5 एंड 6 क्लब क्या हुआ श्लोक है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।